well in the teachers recruitment scam. Let me quickly cut across to these live visuals coming in. This is the Aam Aadmi currently protesting against the MCD. Now, remember, the Aam Aadmi Party versus BJP fight, though, has hit the national capital. Very recently, the Aam Aadmi Party had alleged that the BJP-governed MCD was involved in corruption. That is the allegation that has been coming in from the Aam Aadmi Party, and they have been saying that according to the RTI Act, an amount of 6,000 plus crore rupees has gone missing from MCD's parking and conversion fee escrow account. That's what the allegation has been from the Aam Aadmi Party's side, and now the Aam Aadmi Party has hit the streets, is protesting against the BJP-governed Municipal Corporation of Delhi. Now, the Aam Aadmi Party has been stating that of the 6,800 crore rupees that was collected by the three erstwhile municipalities over the past 12 years, in its parking and conversion free escrow account, only 40 crore was spent on parking, which means there should be 6,700 plus crore in the account still. However, there is only 1.5 crore left in it. So that's the question that the Aam Aadmi Party has been asking the BJP essentially. And as the result of the same, they have now taken to streets to protest against the BJP with regards to this very allegation that they have been leveling. It is the last couple of days that we've seen the Aam Aadmi Party sharpen its attack against the BJP in that sense. The Aam Aadmi Party has also been demanding a probe into the alleged graft so that the culprits are given strictest possible punishment immediately. So that's the version as has been alleged by the Aam Aadmi Party, though the BJP has been saying that these are false allegations being levelled against the MCD, and it has instead been urging the Delhi government to release the pending funds owed to the MCD so that the civic body could repay loans taken from the funds. So that's the allegation versus counter allegation charge that we've been seeing flying thick and fast. Let me go across to Akanksha, who's tracking those protests for us. Yes, Akanksha, what are the Aam Aadmi Party workers on the streets maintaining? Well, absolutely. Aam Aadmi Party has claimed to have unearthed a major scam in the national capital. As you can see behind me, Aam Aadmi Party workers are currently protesting outside the LG Secretariat, and they've alleged toll tax scam of 6,000 crore rupees in the Municipal Corporation of Delhi under the patronage of BJP. Now, what they are seeking is a CBI inquiry into this. They're saying that BJP colluded with two toll tax companies, and this caused a loss of 6,000 crore to the civic body. Now they're saying, we'll just go across and speak to few of them. क्या कुछ डिमांड्स है आपकी? आम आदमी पार्टी का आज प्रोटेस्ट है। हमारे दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी ने लेटर लिखा है एलजी को, जो 6,000 करोड़ टोल टैक्स में एमसीडी में घोटाला हुआ है, उसकी जांच की जाए। उसकी जांच के खिलाफ आज यहाँ प्रदर्शन आम आदमी पार्टी कर रही है। का कहना है कि ये बेसलेस है और ये आपकी फ्रस्ट्रेशन दिखाता है, क्योंकि आपके खिलाफ भी काफी इंक्वायरीज चल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सारे काले कारनामे अब जनता देख चुकी है। जिस प्रकार 600 करोड़ का घोटाला इन्होंने टोल टैक्स में किया है, वो जग जाहिर है, सबको पता लग चुका है। आने वाले समय में दिल्ली में नहीं, हम देश में राज करेंगे। हमें देश को बचाना है। श्री अरविंद केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री बनाना है। Absolutely, these are their allegation that there is a major scam in the toll tax collection in the national capital in the Municipal Corporation of Delhi under the patronage of BJP. All right, Akanksha, keep talking to people there. More people here. क्या कुछ allegations है आपके MCD को लेके? देखिए, एलजी साहब भाजपा के 600 करोड़ रुपए का घोटाला है, सीधे जो कि ये देखिए 600 करोड़ का घोटाला है। लिखा है, आपने बोला है 6,000 करोड़ का है। 600 करोड़, सारे पोस्टर्स में 600 करोड़ लिखा है। लिखा 600 करोड़ है, 600 करोड़ ही बता रहे हैं। 600 करोड़ का भ्रष्टाचार है। सीबीआई सिसोदिया का कहना है 6,000 करोड़ का घोटाला। देखिए, 600 करोड़ का घोटाला है, आगे क्या है जब सीबीआई जांच कराओ आपको पता लग जाएगा। हम भी तो यही मांग कर रहे हैं कि आप सीबीआई जांच कराइए। Protest, they're holding placards that show 600 crore worth of scam, but actually what Manish Sisodia had alleged in the press conference that it is actually rupees 6,000 crore. As you can see, all of them are holding placards here and also a pen in their hand, and that is how they're fixing, they're adding additional zero to it just to mend their mistake here. We'll just go across and speak to more and more people. Sir, बीजेपी का कहना है कि ये बेसलेस एलिगेशन है, कोई स्कैम नहीं है एमसीडी में।
एमसीडी में स्टाफ नहीं है। और एमसीडी की अगर बात की जाए, जहाँ भी अगर दिल्ली में किसी भी एरिया में आप चले जाओ, कूड़े के जगह जगह ढेर लगे हुए हैं। अभी इन्होंने तीनों एमसीडी को एक कर दिया, लेकिन उसके बावजूद अभी भी इतना बुरा हाल है एमसीडी का। जगह जगह जहाँ भी आप देखेंगे सफाई व्यवस्था बड़ी चरमराई हुई है। लेकिन जैसा इन्होंने कहा था एमसीडी एक होने के बाद दिल्ली में काम होने शुरू हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी आप कहीं भी चले जाएं, अभी भी वही हाल है। तो कहने का अर्थ है सिर्फ ये दिखावा और ढोंगबाजी है और राजनीति है सीधी सीधी। अरविंद केजरीवाल जी को काम नहीं करने दिया जा रहा है, उनके खिलाफ उल्टे सीधे आरोप, उनके नेताओं के खिलाफ उल्टे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं। अभी तक कोई आरोप किसी विधायक, किसी नेता के खिलाफ सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये पूरी तरीके से एमसीडी के इलेक्शन आने वाले हैं इस साल, क्या उससे पहले ये सब एक कंट्रोवर्सी देखी जा सकती है? एक छोटी सी बात को समझ लो, दिल्ली के अंदर जो है 17 साल से एमसीडी में बीजेपी काबिज है और एमसीडी मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट कहते हैं। आज दिल्ली की कहीं से भी अब एंट्रेंस कर लो, दिल्ली के माथे पे कूड़ा है। आप किसी भी छोटे से छोटे किसी नगर में कर लो, शिवनगर में कर लो, जी ब्लॉक में कर लो, हरिनगर में कर लो, उसके माथे पे कूड़ा है। आज पूरी दिल्ली के अंदर इन्होंने कूड़े के अंबार बना के रखे हुए हैं। अब जहां तक आती है आपकी बात, जो आप बोल रहे हो कि इलेक्शन, देखिए इलेक्शन तो इनको करवाने पड़ेंगे। इनको पता था कि अगर ये पहले इलेक्शन कराते तो फिर भी हो सकता है इनकी 20-25 सीटें आ जाती, लेकिन ये जितना डिले कर रहे हैं इनकी एक भी सीट इस बार इलेक्शन में आने नहीं वाली। और एक चीज और बोला चाहूंगा, अभी एलजी साहब बोलते हैं जब दिल्ली की जो आपकी एक्साइज पॉलिसी बोले जी रेवेन्यू लॉस हो गया, रेवेन्यू लॉस हो गया। ये रेवेन्यू लॉस दिखाई नहीं दे रहा। जो ठेका 1200 करोड़ के अंदर एमसीडी ने दिया था, वो ठेका 5 साल बाद 700 कुछ करोड़ में देते हैं, तो ये रेवेन्यू लॉस नहीं है और उसी कंपनी को देते हैं। तो ये साफ साफ एमसीडी से हम एलजी साहब से जो है वो इल्तिजा करते हैं। As you can see, these are the allegations, but as you can see, there are also some confusion going on here as they've added additional zero to it. क्या कुछ यहाँ कुछ confusion था कि ये 600 करोड़ का है घोटाला या 6000 का? सिर्फ एक क्लैरिकल एरर है और कुछ नहीं है। ये क्लैरिकल एरर है और कुछ नहीं है। और घोटाले तो हो रहे हैं। एमसीडी में एक काम ये बता दे जो बिना घोटाले के काम होता है। सारी चीजों में एमसीडी में बिना पैसों के वहां पे कोई भी काम नहीं होता। आप अगर अपने घर पे ईंट लेके आओगे, बदरपुर लेके आओगे, तो एमसीडी वाले आ जाएंगे नोट लेने। तो एमसीडी जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रख दिया बीजेपी ने। हम लोग आएंगे और इसके अंदर हाँ, कहना है कि एलजी साहब उनको डिफेंड कर रहे हैं। बिल्कुल एलजी साहब को ऐसा लगता है कि उनकी आंखों में मोतियाबिंद उतर आया है। उनको दूसरों के जो भ्रष्टाचार नहीं भी है तो भ्रष्टाचार बना के उनको पेश किया जा रहा है, लेकिन भाजपा के जो 6000 करोड़ का भ्रष्टाचार है उनको दिखाई नहीं दे रहा। तो ये दिया जिसने शिक्षा का मॉडल जो है वो ना केवल दिल्ली में बल्कि चर्चा पूरे वर्ल्ड में बोला जा रहा है कि आपका एलिगेशन एक फ्रस्ट्रेशन की तरफ से देखा जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के खिलाफ बहुत सारी इंक्वायरीज चल रही है। छोटी सी बात है, ये लॉजिकली बात कर रहा हूँ। एक ठेका जो कि 2017 में 1200 करोड़ का था, वो अभी 700 कुछ करोड़ का कैसे हो गया? मेरे को एक बात आई है, महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? महंगाई बढ़ी है ना, तो ठेके के रेट भी बढ़ने चाहिए थे, गाड़ियां भी बढ़ी है, पॉपुलेशन भी बढ़ी है। तो ये साफ साफ भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। इसमें रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ। इसकी हम क्या मांग कर रहे हैं? हम कह रहे हैं सीबीआई की जांच हो। हम यही तो मांग कर रहे हैं। तो सीबीआई की जांच होनी चाहिए। अगर कोई घोटाला नहीं हुआ तो क्यों डर रहे हैं? एलजी साहब क्यों अपने मित्रों को बचा रहे हैं? एलजी साहब क्यों बीजेपी के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो गलत बात है ना। मनीष सिसोदिया की जांच कराएंगे, जिसने हिंदुस्तान का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन कर दिया, उनकी जांच कराएंगे, लेकिन एमसीडी की जांच नहीं कराएंगे। क्या कुछ एलिगेशंस है, आप एक्सप्लेन करेंगे? एलिगेशंस इन द सेंस, मैंने भी जैसा हाल बताया, दिल्ली में कितना बुरा हाल है, ये सिर्फ और सिर्फ ये आम आदमी पार्टी से घबराए हुए हैं और इसको सत्ता में नहीं रहने देना चाहते। आरोप लगाना नेताओं पे, और आज तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, आपने देखा है हमेशा। और इतनी बुरी हालत है। एमसीडी को एक करने का फायदा क्या हुआ, मैं ये जानना चाहता हूँ। आपने कहा हम एमसीडी का एकीकरण कर रहे हैं। एकीकरण करने के बाद अगर कोई हल निकलता तो ठीक कीजिए। एकीकरण किए हुए भी काफी समय हो गया, आज भी एमसीडी का बुरा हाल है, आज भी लोग परेशान हैं। तो ये सारी चीजें कि दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार के जो विधायक नुमाइंदे हैं वो एमसीडी की सड़कों पे फंड देने के लिए तैयार हैं, वो पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन एमसीडी और एलजी साहब की तरफ से कोई परमिशन नहीं दी जा रही उन रोडों को बनवाने के लिए। बिल्कुल सही बात। अगर केंद्र सरकार ये सोचती हो कि हम अपना आदमी बेच के दिल्ली में सरकारी काम, अच्छी शिक्षा, अच्छे अस्पताल बनने से रोक सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। एलजी साहब को अगर दिल्ली सरकार में कमियां दिख रही है तो सबसे पहले एमसीडी में जाएं। एमसीडी के हर एक सीढ़ी पर भ्रष्टाचार मिलेगा उन्हें। एमसीडी ने 15 साल में दिल्ली को बिल्कुल लूट लिया। मकान पर भ्रष्टाचार, जन्म प्रमाण पत्र पर भ्रष्टाचार, मृत्यु प्रमाण पत्र पर भ्रष्टाचार।
ऐसी कोई चीज नहीं है जो एमसीडी ने भ्रष्टाचार में ना छोड़ी हो। शर्म आनी चाहिए भाजपा के नेताओं को, जो दिल्ली लूट खाई उन्होंने। प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा अब आम आदमी पार्टी का? देखिए, आप अगर किसी 5वीं कक्षा के छात्र से भी पूछेंगे कि देश में 5 साल में महंगाई बढ़ी है नहीं बढ़ी है, हर एक चीज महंगी हुई है, मगर ये पहली ऐसी भ्रष्टाचार सरकार है जो एमसीडी में बैठी हुई है। जो 1200 करोड़ का टेंडर था उसे 750 करोड़ में दे दिया गया। जब 1200 करोड़ का दिया गया उससे भी पूरे वसूले नहीं गए। इनके हर एक चीज में भ्रष्टाचार है। हम एलजी साहब से इतना कहना चाहते हैं, एलजी साहब, कि आप उनकी जांच कराना चाहते हैं जो भ्रष्टाचार नहीं है, और जो भ्रष्टाचारी है जिन्होंने 15 साल से भ्रष्टाचार किया, एक बार आप वहां पे भी जांच करवाइए, आप सीबीआई भी भेजिए। एब्सोल्युटली, बट इट लुक्स लाइक आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया है कि आपको क्लैरिटी थी कि ये 600 करोड़ है, 6000 करोड़ है, कि आपको क्लैरिटी थी, आपने भी फिक्स किया है? 6000 करोड़ का घोटाला है। पर आप जब यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं, सबके पोस्टर्स पे 600 करोड़ लिखा था, और फिर आप लोग पेन से उसे फिक्स कर रहे थे। वो गलत, ये गलत। बट अभी भी आई विल शो यू फ्यू पोस्टर्स हियर लाइक दिस वन। आपने अभी तक इसको फिक्स कर दिया है इसको? आपको क्लैरिटी थी इस बारे में कि ये 600 है, 6000 है? मैंने आपको बताया ना अभी, जैसे ये क्लैरिकल मिस्टेक थी। आपको क्लैरिटी थी जब तो चेंज किया है। देखिए, आप देखिए 6000 करोड़ कर चुके हैं हमसे पहले ही। सबको पेन दिए गए सो दैट आप लोग फिक्स करिए। Exactly, something. So it appears that there was a lack of clarity about what the actual figures are. Their own minister had clarified that it is a scam of 6,000 crore rupees. But as we came here, we saw that there was some confusion between the workers. They were not sure whether it is 6,000 crore or 600 crore. But